وہ ہمیشہ سر بلند رہے، تا قیامت تک قائم رہے۔ اس بنا پر آل نبی اولاد علی نے ظلم و ستم کو برداشت کیا اسلام کو زندہ رکھنے کی خاطر۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے، قتل حسین اثر میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اثر میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں برداشت اور صبر کا درس دیتا ہے۔ اس میں ہر لوگ اپنے اپنے عقیدے کے تحت اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ماتم کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی سبیل لگا کے کرتا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہیں امام حسن علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام سے 11 مہینے بڑے تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں تھوڑا سا اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر چونکہ روزہ عاشور کو بھی اسپیشل یہ ٹرانسمیشن چلتی رہنی ہے تو مزید داستان کربلا اس وقت بھی بیان کریں گے۔ لیکن ابھی تھوڑا سا انٹروڈکشن صرف اس لیے کہ جو انفارمیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ تک شیئر کی جا سکیں۔ ویسے تو ناظرین کرام 5 محرم الحرام کا دن شبیہ رسول جناب علی اکبر کے نام سے منسوب ہے۔ وہ علی اکبر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کہا جاتا تھا، یعنی شبیہ کہا جاتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ان کا سیم جو شکل و صورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں جی علی اکبر علیہ السلام۔ جوان بیٹے کے سینے میں جب خنجر لگتا ہے تو پیرنٹس کا کیا عالم ہوتا ہے، یا والد کے لیے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا کیا عالم ہوتا ہوگا، یا اس ماں کا جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مائیں ہیں جن کی عظمت کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو خود تیار کیا کہ امام حسین علیہ السلام سے سب سے پہلے جان تم نے نچھاور کرنی ہے۔ ہم مائیں جب بچوں کو تیار کرتی ہیں، ہماری مائیں بچوں کو تیار کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آج بچہ جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، صبح اتنے بجے جا رہا ہے، 2 بجے گھر آ جائے گا۔ لیکن یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ ان کے بچوں نے واپس نہیں آنا، لیکن اس کے باوجود ان ماؤں کے، ان بچوں کے حوصلے بلند رہے ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کہتے ہیں کہ جب انہیں روزہ عاشور خنجر لگا اور ان کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی تو امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کی لاش پہ اس طرح پہنچے جس طرح چھوٹا بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی بصارت چھن چکی تھی۔ obviously وہ کیا عالم ہوتا ہوگا جب ایک جوان بیٹے کا لاشا باپ کے ہاتھ میں ہو، تو باپ تو یہی کہے گا نا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ علی اکبر ہیں جنہیں بھری جوانی میں شہید کیا گیا، جنہوں نے اپنے نانا کا، اپنے باپ کا سر جھکنے نہیں دیا اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے۔ محرم الحرام میں ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ گرمی کی شدت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اس وقت کرب و بلا میں کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ناظرین کرام، جب امام حسین علیہ السلام روزہ عاشور جناب علی اکبر علیہ السلام کی لاش کے پاس پہنچے، اس طرح پہنچے کہ جس طرح چھوٹا بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، تو کہتے ہیں کہ علی اکبر تیرے بعد یہ دنیا اندھیر ہے۔ اب ویسے باپ سے نہیں چلا جائے گا، ویسے نہیں جیا جائے گا جس طرح تمہارے ساتھ ہونے سے، کہتے ہیں نا کہ بیٹا جوان ہو جائے تو باپ کا کندھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے دین کی خاطر، دین کو بلند رکھنے کی خاطر اپنی اپنی جانوں کو قربان کیا، شہید ہو گئے نانے کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے نا وہ بیٹوں سے چلتی ہیں،
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनकी नस्ल बेटी से चली, हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने इसे खुश किया उसने मुझे खुश किया। तो नाज़रीन किराम, आजकल जो हमारे मुआशरे में एक कंसेप्ट चल रहा है ना शिया सुन्नी का, और फिर ये कहते हैं कि जो अली अली करता है तो वो शायद शिया है। ये सारे का सारा मामला जो है ये एक्चुअली क्यों है? तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब इस्लाम की जंग चल रही थी हक और बातिल की, तो उसमें यह हुआ था कि हक को फतह नसीब हुई थी, बातिल हार गया था। यानी यजीदियत मर चुकी है, हुसैन जिंदा है। तो फिर ये शिया सुन्नी का कंसेप्ट कहां से आ गया? जब तक हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, अहले बैत को नहीं मानते, हमारा दीन मुकम्मल नहीं है। तो फिर ये लगा देना, एक टैग लगा देना कि ये अली अली कर रहा है तो शायद ये शिया है, वो इमाम हुसैन को मान रहा है तो वो शिया है। ये बिल्कुल चीजें जो है ना वो इस्लाम से हटती हैं। दो फिरके बचे थे, हुसैनियत और यजीदियत। तो जो हुसैनी है वो इमाम हुसैन के साथ हैं। तो हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, और हुसैन रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेगा, इसी तरह नाम बचता रहेगा। और एक और बहुत सी चीज है कि आजकल की कौम ये भी समझती है कि जो अली अली करते हैं वो शिया है। इवन के जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लोगों को जमा किया था, कोई मेंबर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ईंटों का एक वो स्टेज बना लिया था और इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथ अपने हाथ में पकड़ा था और कहा था कि मन कुंतुम मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो फिर ये लेबल लगाना कि अली की मोहब्बत, अली से मोहब्बत ना करना या अली को मानने से इनकार करना, नाउज बिल्ला अजीबो गरीब बातें करना, ये सारी की सारी चीजें हमारे इस्लाम में नहीं है। क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद ने ही हमारा दीन बचाया ना। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम कौन है? वो हैं जिन्होंने बच्चों में सबसे पहले जो है वो इस्लाम कबूल किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये वही नाजिल हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नबी हूं, मेरी कौन मदद करेगा? तो उस वक्त हजरत अली सबसे पहले खड़े हुए थे कि मैं करूंगा। और नाज़रीन किराम, हजरत अली अलैहिस्सलाम को इस इस्लाम की बिना पर बहुत सारे अपनों के इख्तिलाफात भी बर्दाश्त करने पड़े थे। तो अली एक मामूली सी हस्ती नहीं है, अली हजरत फातिमा तो ज़हरा के शौहर हैं। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि उसको मानना है उसको नहीं मानना, बस ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा यह है कि उनकी आल औलाद से मोहब्बत की जाए। आले नबी से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। जब तक हम मोहब्बत नहीं करते हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ये चीज क्लियर होगी कि इस्लाम की जब जंग हुई थी दो चीजें थी, हक और बातिल की। तो हक जीत गया था, यानी हुसैनियत जीत गई थी, और यजीदियत मर चुकी है, जिसपे आज भी लोग लानतें करते हैं। तो ये शिया सुन्नी और वो अली अली करना, ये गुमराही की तरफ चीजें लेके जाती हैं। हर किसी का अपना अकीदा है, अपना इजहार करने का एक मोहब्बत करने का तरीका है, और उसी तरह हम लोग इजहार करते हैं। तो नाज़रीन किराम, हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जहां जहां हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है वहां पर हजरत हसन का भी जिक्र होता है। ये नहीं हम कर सकते कि हम हजरत हुसैन को याद करते जाएं और इमाम हसन को हम बिल्कुल एक साइड पे रखते हैं। हसनैन करीमैन से मुराद यही है कि हसन और हुसैन, उनसे मुराद सिर्फ हजरत हुसैन नहीं है। हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम यानी हजरत हसन और हुसैन, जिन्हें जन्नत के शहजादे कहा गया। तो नाज़रीन किराम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ बात करते हैं। ये वो हस्ती है कि जिनके बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। अगर आज की हम बात करते चले, हम अपने मुआशरे में रहते तो जरूर हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर टैगिंग करना, उसको ब्लेम करना, और फिर उसके बाद जो है वो अगर मियाँ बीवी के हवाले से बात करें तो उसकी बुराइयों को दुनिया भर में उछालना।
ये होता है हमारे मुआशरे में, यही चीजें चलती हैं। मुहर्रमुल हराम सिर्फ इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करने का महीना या इनको पुरसा देने का जो महीना है सिर्फ मुहर्रम का नहीं है, बाकी महीने भी जो हैं उसमें हम इन्हें याद करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक स्पेसिफिक हम लोगों ने रखा हुआ है कि योम आशूर आ गया तो हम इनको याद कर लें। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि एक बार जो मैंने अपने भाई से जो बहुत अच्छी चीज सीखी वो ये थी, बहुत सी चीजें सीखी लेकिन उनमें से एक ये थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का और उनकी बीवी का आपस में झगड़ा हो गया, शदीद किस्म के इख्तलाफात हो गए, इस कदर बढ़ गए कि बात तलाक तक पहुंच गई। अगर हमारे मुआशरे की बात करें ना तो फिर अगर हम उसको उस बंदे या बंदी को छोड़ भी देते हैं, डाइवोर्सेस हो जाती हैं, क्योंकि शुरू से एक रस्म जो है ना वो चलती आ रही है, शुरू से एक डाइवोर्स का जो सिस्टम है ना वो निकला था, ये नबियों वलियों पैगंबरों से ही निकला था। तो हम लोग उसकी बुराइयां बयान करते हैं, वो फलां के साथ ऐसा था ये ऐसी थी, वो उसके साथ ऐसा था ये ऐसी थी। हम ये नहीं देखते कि हमारे अपने अंदर वो क्या क्या वीकनेस थी जिसकी वजह से हमारा रिश्ता मजबूत नहीं हुआ। यहाँ ठीक है, जिस तरह वो अल्लाह पाक ने एक लिमिट रख दी थी कि इस बंदे के साथ इतना चलना है, वो सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हम लोग टैगिंग शुरू कर देते हैं, हम लोग ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं, लेम एक्सक्यूजेस बना लेते हैं, सिर्फ अपने आप को जो है ना वो पार्ट सा फील कराने के चक्कर में। ये वो हस्ती है जिनके अपने भाई इनके पास आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फरमाया ए बड़े भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम, क्योंकि इनके बारे में इमाम हुसैन कहते हैं कि ये मेरे बड़े भाई नहीं है बल्कि मेरे इमाम ही हैं, बहुत कुछ सीखा है। और वो एक चीज जो ये थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी का जब इख्तलाफ हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, कहा भाईजान भाभी के साथ क्या मसला चल रहा है, बात तलाक तक आ पहुंची है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उन्हें गले लगाया, कहा हुसैन क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा जिसमें अल्लाह ये फरमाता है कि मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो अगर उसमें कोई खामी होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं कुरान तो पढ़ा हूं लेकिन उसकी मुकम्मल जो तफसीर है ना वो आज मुझे समझ आ रही है। कहते हैं कुछ टाइम बाद उनकी तलाक हो गई। फिर मैं कुछ दिनों बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आया, फरमाया ऐ मेरे भाई अब तो आप लोगों की तलाक हो गई है, अब तो मुझे बताएं कि माजरा क्या है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत का इजहार किया, गले लगाया, माथा चुमा, कहा हुसैन अब वो मेरे लिए गैर महरम हो गई है तो मैं किसी गैर महरम की बातें तुम्हारे सामने क्यों करूं। ये थी वो हस्ती कि जब रिश्ता था तो उन्होंने कहा कि मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है, मैं वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे सामने बयान नहीं कर सकता, अगर उसमें कोई खामी है तो मैं उस पर पर्दा डालूंगा बिकॉज कि मैं उसका शोहर हूं। और जब डाइवोर्स हो गई तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए नामहरम हो गई है, गैर महरम है, तो मैं किसी गैर महरम की बातें तुम्हारे साथ क्यों करूं। इस पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गले लगाया और कहा कि ये वो कुरान की जो रूह है ना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस कदर अटैच है कि वो मेरे तक आ रही है। मैं कुरान को पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका था लेकिन उसकी तफसीर मुझे अब समझ आई है कि रिश्तों को निभाने के लिए किन किन चीजों का होना जो है वो लाजिम है। ये वो हस्ती है इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्हें जन्नत के शहजादे कहा जाता है। और नाज़रीन किराम, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के तारे रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दफा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं ये वो उनके घराने के वाहिद बच्चे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि नाना चांद खड़े हो जाएं, मैंने आपके बराबर आना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हो गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पांव घुटनों पे रखे, फिर सीने पे रखे और फिर अपना जो सर है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से भी ऊपर कर लिया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आप सल्लम फरमाने लगे, हुसैन तुमने मेरे बराबर होने का कहा था, तुम तो मेरे कद से भी ऊपर बड़े हो गए हो। तो ये वालिहाना मोहब्बत, ये वो अकीदत, वो मोहब्बत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से करते रहे हैं। वो एक लाड, वो एक प्यार जो ननियाल के साथ होता है, वो एक अटैचमेंट। तो फिर ये होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जुबान बाहर निकालते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो है अपना जो लुआबे दहन है उनके साथ मस करते हैं और फिर वो एक लाड प्यार का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अगर मसाज की बात करें तो
इनकी स्टार्टिंग की सबसे पहले बात करें कि इस हवाले से सबसे पहले ख्वाब किसने देखा, क्या हुआ। लेकिन नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद नहीं, उनको जो है ना वो शहीद नहीं किया गया, बल्कि उनको जहर दिया गया था। और हर कोई जानता है कि कहते हैं कि उनकी बीवी ने उनको जहर दिया था। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों के दौर में ही होता है कि अगर किसी के साथ हमारी दुश्मनी हो जाती है, किसी पे शक होता है, तो हम अक्सर हमारे मुआशरे में ऐसे केसेस होते हैं कि हम कहते हैं कि नामालूम अफराद पे हम लोग अगर FIR करवा देते हैं तो उसके अंदर फलां बंदे के साथ दुश्मनी है तो चलो उसको इसके अंदर रगड़ देते हैं। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब तबीयत खराब हुई और इमाम हसन अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा कि भाईजान क्या आप जानते हैं कि आपको जहर किसने दी है? तो फरमाते हैं कि मुझे शक है। तो उन्होंने कहा कि अगर शक है तो मुझे बताएं। तो कहा कि अगर शक है तो अगर वो शक ही रहा तो फिर मैं किसी भी बेगुनाह को क्यों बदनाम करूं? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर वो बंदा ठीक हुआ, वही हुआ, आपका शक ठीक हुआ, तो फिर कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, वो बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा हसन सैयद है, जब दो मुसलमान जमातें आपस में लड़ेंगी तो मेरा हसन उनमें सुलह करवाएगा। तख्तो ताज के बादशाह जिन्होंने अपने नाना के दीन को बचाने की खातिर तख्तो ताज को छोड़ा और अपनी सारी की सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, वो सखी घराना जब कोई साइल मांगने आता था तो खाली हाथ नहीं जाता था। हमारे में मोस्टली ये चीजें चलती हैं कि अगर कोई साइल मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, तो हम उसे कह देते हैं कि भाई इसके तो हाथ पांव ठीक है, हट्टा कट्टा है, हम इसको क्यों दें। लेकिन ये भी फरमान है कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई साइल तुमसे अल्लाह की राह पे मांगता है तो फिर ये ना देखो कि उसका हुलिया कैसा है, या वो बिल्कुल तंदुरुस्त है या ठीक है, साइल को खाली हाथ नहीं भेजते। ये वो सखी घराना है जिन्होंने खुद जो है वो फाके बर्दाश्त किए हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो है उन्होंने एक सरखुरू बख्शी है, एक इस्लाम के नाम पे हमें जिंदगी नहीं दी है, जिसकी वजह से इस्लाम जिंदा है। ये वो सखी घराना है। तो नाज़रीन किराम, बात अब आ जाती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से। एक बार सुबह का वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जो है उम्मे फजल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। कहा कि ए मोहम्मद, मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारे जिगर का टुकड़ा मेरी गोद में आ गिरा है। मैं ये ख्वाब देख के बहुत ज्यादा घबरा गई हूँ, डर गई हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है, तो मैं तुम्हारे पास चली आई। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चची जान, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि नबियों के सरदार हैं जिन्हें हर चीज का इल्म है। वो मोहम्मद हैं जिनकी खातिर अल्लाह पाक ने पूरी की पूरी दुनिया को तख्लीक किया। अगर मोहम्मद का वजूद ना होता तो आज ये दुनिया भी ना होती। अल्लाह पाक ने इश्क किया तो दुनिया बनाई। फिर जब हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम ने इश्क किया था तो उनकी खातिर जो है वो, जब तक उन्होंने अजान नहीं दी थी, दिन नहीं निकला था। तो इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ये शहादत हुई है तो उसकी वजह से उनका नाम रहती दुनिया तक जो है वो कायम रहा है। कुंबे का कुंबे कहाए गए हैं। किसी भी पेरेंट्स के लिए ये नॉर्मली चीज नहीं होती कि उनके बच्चों को कुर्बान किया जाए। इवन के बच्चों को बुखार हो जाए तो माँ बाप तड़प जाते हैं। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस्लाम के खातिर खुद कुर्बान किया, तैयार करके। ये कोई आम माए नहीं थी, ये कोई आम जो है वो बाप नहीं थे, या आम बच्चे नहीं थे। ये वो बच्चे थे जिन्होंने छोटे छोटे ओनो मोहम्मद भी थे तो उनके माइंड में ये कंसेप्ट था कि हमने हुसैन से पहले शहीद होना है। तो जब ख्वाब का मंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया तो आप वसल्लम ने कहा कि चची, ये घबराने की बात नहीं, खुशी की बात है कि मेरी फातिमा के घर एक बेटा होगा और वो तुम्हारी गोद में खेलेगा। तो इस कदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा प्यार किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि वो जानते थे कि हुसैन के मसाइब बहुत ज्यादा हैं। और इमाम हुसैन ने इश्क किया तो अपनी पूरी की पूरी दुनिया लुटा दी थी। फिर क्या होता है कि एक दफा का ये होता है कि बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैं पर्दे के पीछे थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए घर में और इमाम हसन और हुसैन को कहा कि कुश्ती करो। जिहाद की तरबियत भी घर से होती है, तो अच्छों की सोबत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इनकी तरबियत भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की थी, जिस तरह हजरत अली की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की थी। तो कहा कि लड़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हसन को कह रहे थे कि हुसैन को पीछे से पकड़ो, टांगों से पकड़ो। ये सुन के तो बीबी फातिमा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह,
آپ حسن کو کیوں گائیڈ کریں, وہ تو آلریڈی 11 مہینے بڑا ہے, آپ چھوٹے کو فوکس کریں. تو انہوں نے کہا کہ تم چپ کرو فاطمہ, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی, اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی. اگر میں حسن کو گائیڈ کر رہا ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین کو بتا رہے ہیں. یہ وہ سارے کا سارا گھرانہ ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی خاطر, ان کے دین کو بچانے کی خاطر اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. ان کے ساتھ اس طرح والہانہ عقیدت محبت کا اظہار جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو ان کے ساتھ کرتے تھے, ان کو کندھوں پہ اٹھا لینا, لاڈ پیار کرنا, تو کس طرح ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. ایک بار پھر نیا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.